So, students, once again, good morning to all of you. As we have finished in the previous class, different ways to calculate the capital, assets, liabilities by using the formula, even also how to calculate the profit through accounting equation. Today, our topic is meaning of debit and credit, right? So, देखो debit and credit, there are two accounting concept. One is modern accounting concept in which we will study about the T-shape account, and later on I will teach you golden rule of accounting, that is also known as double entry system, and debit and credit rule of each and every account, how to pass. So today our topic is only meaning of debit and credit, which we will understand through the modern accounting concept, not double entry system. Okay, so just I'm going to read here. You will see it carefully, which is showing on your screen. So here, जैसा कि आपको बताया कह रहा है, we have read that transactions are recorded in the books of accounts on the basis of dual aspect concept. Since we are doing a study as per the dual aspect concept in the principles of accounting I have taught, according to this, each and every transaction having twofold effect. One aspect is to be debited and other one is to be credited. That's why we have to study here debit and credit rule. So here it is saying, accordingly, every business transaction has two aspects, that is debit and a credit of equal amount. ध्यान रखना, debit and credit must be of equal amount. For every debit, there is the credit. जितने भी डेबिट की एंट्री करेंगे उसकी क्रेडिट जरूर होगी करस्पॉन्डेंट टू क्रेडिट of equal amount in one or more accounts. Suppose that one debit, more credit, or more debit, one credit, but the amount must be equal of total of debit and total of credit, and vice versa. So for every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts, and vice versa means just reverse. The system of accounting is thus called double entry system. So देखो ये double entry system पे ही पूरा based है, but हम लोग को इसमें modern accounting concept पे 5 accounts होते हैं, उसके बारे में study कर रहे हैं, इसमें लिखा नहीं है. And the place where such a record is kept and maintained is called account. So ध्यान से समझना यहाँ पर कह रहा है, the system of accounting is thus called double entry system because every debit having the credit, and the place, एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, the place where such a record is kept and maintained is called account. As account, about account I have taught already in the very first chapter or second chapter. We have separate accounts for each item, such as account of RAM, machinery, salary, sales, purchases, capital, etc. Means separate account means suppose that जितने भी number of new name होंगे, new items होंगे, उसका अलग separate account. जैसे मिस्टर राम एग्जाम्पल में लिया है कि राम से आपने जितना परचेस सेल किया या जितना उसके और आपके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारा अकाउंट एक अलग जगह बनाएंगे जिसमें राम का ही सारा होगा. जब मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कितना मशीन खरीदा, कितना सेल कर दिया, कितना डेप्रिसिएट हुआ, वो सब मशीन में जाएगा. सैलरी कितना पूरे साल भर में पेमेंट किया, वो सब सैलरी अकाउंट में जाएगा. दिस मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जो इंडिविजुअल है, किसी दूसरे से मतलब कि आपस में रिलेटेड नहीं है, हर एक सेपरेट अकाउंट का, सेपरेट नेम का, सेपरेट आइटम का हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. सो बाकी कह रहा है, इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अकाउंट refers to ledger, राइट. अकाउंट को हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं?
लेजर रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम इन ए समराइज्ड फॉर्म। तो लेजर को ही हम लोग अकाउंट कहते हैं, ठीक है, इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। जब कोई पूछे कि प्रिपेयर द पर्टिकुलर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, तो दिस मींस दे आर टॉकिंग अबाउट लेजर। ओके, सो लेजर रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम इन ए समराइज्ड फॉर्म, मतलब हर एक आइटम का एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारा रिकॉर्ड करते हैं समराइज्ड फॉर्म में, जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। All accounts are divided into two sides. The left side of an account is called debit side and right side of an account is called credit side. So accounts जो होते हैं उसके कितने sides होते हैं? Two side, यानी एक ऊपर से पैरेलल लाइन अगर horizontal लाइन खींचा जाए और उसको बीच से बाइफरकेट कर दिया जाए तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उस अकाउंट का शेप कैसा आएगा? टी के जैसा आएगा, है ना। सो जब टी के जैसा आएगा तो इसी को हम लोग टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। सो thus an account looks like the letter T, that is all cash transactions are recorded in cash account as per the format given below. For example, I'm showing you format, you see cash account. So cash account जब मैंने बनाया तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शंस होंगे वो कैश अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका डेबिट है और ये राइट हैंड साइड क्रेडिट है। सो देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसे खींचा गया और बीच से ऐसे हमने बाइफरकेट कर दिया तो टी के शेप में हो गया, इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट भी हम लोग कहते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सो अब आगे कह रहा है कि डेबिट में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। जेएफ मींस होता है जर्नल फोलियो। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि जर्नल के बाद बनाते रह जाते, लेकिन यहाँ मॉडर्न अकाउंटिंग में हम आपको डायरेक्टली सिखा रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड रुपीज, तो सेम कॉलम रहेगा, जस्ट रिपीट, यानी 1 2 3 4 इधर होगा, 1 2 3 4 इधर होगा, यानी टोटल 8 कॉलम्स। फर्स्ट 4 जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और ये जो है क्रेडिट साइड है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग को लेजर का फॉर्मेट समझ में आ गया, अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया। और अकाउंट मींस होता क्या है कि ऑल सेपरेट, वी हैव सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच आइटम्स, कह रहा है हर एक आइटम्स का एक सेपरेट प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं जिससे अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है इन अकाउंटिंग लैंग्वेज एन अकाउंट इज रिटेन एज अकाउंट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अकाउंट को अकाउंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, A/C, ओके, यू कैन सी। सो A/C यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट का। ऑन द बेसिस ऑफ ईच अकाउंट वी कैन ascertain the ultimate position of each account। हम लोग क्या कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईच अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट अगर बनाया तो कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा मेरे पास इस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में रिसीव हुआ, कितना पेमेंट किए और कितना अभी मेरे पास बचा हुआ है, वो सब कैश अकाउंट बनाने से पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह मशीन अकाउंट बनाने से ये पता चलेगा कितना मशीन हमने खरीदा, कितना बेच दिया, कितना खराब हो गया और कितना अभी भी बचा हुआ है, वो मशीन अकाउंट। तो जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है उसका अकाउंट हमें सेपरेट बनाना पड़ेगा, ओके। सो फॉर इंस्टेंस गुड्स सोल्ड इज रिटेन ऑफ द लेफ्ट साइड, that is debit of the customer's account, and payment received from the customer are shown on the right side, that is credit. So the difference between the total of two sides reflects balance due towards the customer. So अगर आपने किसी को goods बेचा, बता रहा ना, goods sold is written in the left hand side यानी debit side of the customer's account। जिस कस्टमर को, मान लो मिस्टर एक्स को गुड्स उधार बेचा तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे और जब वो पेमेंट करेगा तो क्रेडिट में। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने पे जो बैलेंस बचेगा इसका मतलब कि वो पैसा अभी हमें और उससे लेना है। तो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स रिफ्लेक्ट्स बैलेंस ड्यू टुवर्ड्स द कस्टमर। द डेबिट साइड इज, the debit side in above is shown as DR। डेबिट साइड को हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड को कैसे लिखते हैं, CR, ठीक है। सो ये आपका डेबिट का एब्रिविएशन हो गया DR और क्रेडिट का एब्रिविएशन हो गया CR, और ऊपर आपका जो अकाउंट का एब्रिविएशन है वो
ये है ए सी, ए ऑब्लिक सी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सिर्फ अभी अकाउंट के बारे में पता चला कि अकाउंट में क्या होता है, कितने कॉलम्स बनाए जाते हैं, किस फॉर्मेट में होता है। बट अभी आप लोग को ये नहीं मालूम कि कब हम डेबिट करेंगे और कब हम क्रेडिट करेंगे और किस अकाउंट को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग, all accounts all the accounts are divided into 5 categories, namely assets, liabilities, capital, expenses or losses, and revenue or gains. So these are 5. Okay, so in these 5 accounts we have to record. Assets में क्या होता है, आप accounting equation में पढ़ चुके हो. There are so many kinds of assets: fixed assets and current assets. Current asset like cash, bank, debtor, bill receivable, stock और inventory. ठीक है, prepaid expenses, accrued income, ये सब क्या है, assets है। ठीक है, और फिक्स एसेट में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। लायबिलिटीज में क्या होता है, लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, ठीक है, रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब लायबिलिटीज में है। कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। एक्सपेंसेज, जो हम बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ में जो खर्च करते हैं, लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज पेड एक्सेट्रा, जो पेमेंट करता है वो एक्सपेंसिव। लॉस क्या हुआ, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, आग से जल गया, या हमें गुड्स 10 रुपए का खरीद कर हमने 9 रुपए में बेच दिया तो लॉस हो गया। ठीक, या क्या हो सकता है कि हमारा जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कोई पुराना एसेट्स था जिसकी वैल्यू हमारे यहाँ 10,000 थी बट हमने 8,000 पे सेल कर दिया, लॉसेस। ओके, एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम, जैसे सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, जैसे कि रेंट रिसिव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसिव्ड। ओके, गेन में क्या आएगा, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये गेन हो गया। तो देयर आर टोटल 5। अब इस 5 अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। सो नाउ सी हियर, वी नो that accounting equation is asset is equal to liability plus capital। तो जो assets होता है और expenses and losses, ये दोनों को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और liability, capital और income को क्रेडिट में। कैसे, अब हम लोग देखते हैं यहाँ। सो देखो, assets have debit balance, ये भी आप याद रखो। assets का हमेशा क्या बैलेंस होगा, डेबिट, क्योंकि assets को हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं। while liabilities and capital have credit balance, तो ये बात याद रखना चाहिए, assets always having debit balance, liabilities and capital always having credit balance, right? We have read in accounting equation that expenses and losses reduce the capital। अब आप बताओ, देखो अकाउंट्स में दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर किसी चीज को पहले से कोई चीज डेबिट है, ध्यान से समझना, if anything is already having debit and we want to increase same item, so जो चीज डेबिट है और उसे इंक्रीज करना है तो हम और डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर देंगे, राइट? ठीक उसी तरह जैसे लायबिलिटीज और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट मींस कि अगर हमें लायबिलिटीज को इंक्रीज करना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है तो हम और क्रेडिट करेंगे, और जब माइनस करना होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसा कि मैथ्स में आप लोग को पता है, कोई भी चीज प्लस है तो और प्लस करना है तो प्लस ही करेंगे, उसमें कम करना है तो माइनस। ठीक इसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी भी चीज को जो ऑलरेडी डेबिट है और इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा फॉर द लायबिलिटीज एंड कैपिटल के लिए। सो दस यहाँ पे कह रहा है कि we have read an accounting equation that expenses losses reduce the capital, क्योंकि जब accounting equation आप बनाते हो तो कोई भी expenses होता है तो क्या करते हो, कैपिटल से माइनस करते हो। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो जनरली लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है।
एज पर रूल डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन अगर कभी उसको डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट कर देंगे, और एसेट्स को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर देंगे। ध्यान से समझना, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी एंड कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। सो अगर कोई एक्सपेंसेज हो रहा है तो एक्सपेंसेज से हमारा कैपिटल कम हो रहा है, कम होगा, तो कम करने के लिए जो चीज क्रेडिट होता है उसको डेबिट करते हैं, तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कम होने पर। इसका मतलब एक्सपेंसेज हमेशा हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। जैसे ही हम इसको डेबिट करेंगे वैसे ही हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। एंड दे हैव टू बी डेबिटेड व्हाइल इनकम एंड गेन्स इंक्रीज द कैपिटल, और जबकि इनकम और गेन से आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए इनकम और गेन से कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है। जो चीज से कैपिटल आपका कम होगा उसे डेबिट, और जिस चीज से कैपिटल बढ़ेगा उसे क्रेडिट। इनकम और गेन को क्रेडिट करेंगे। So the capital, so they have to be credited. Thus, two sets of simple rule have emerged for recording debit and credit in any account. देखा जाए तो सिर्फ दो सेट्स ऑफ रूल बनते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। These rules are जैसे डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स तुम्हारा जनरली डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेज से कैपिटल रिड्यूस होता है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट करेंगे डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेज। देखो, जब इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा तो डिक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेज क्या होगा, क्रेडिट। अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है या एक्सपेंसेज कम हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक इसी तरह रूल 2 है, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल और रेवेन्यू और गेन्स। सो क्रेडिट कब करेंगे, कैपिटल को या रेवेन्यू को या गेन को, जब वो इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल विल बी डेबिटेड। ओके, सो इंक्रीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज डेबिट होगा। जस्ट रिवर्स है, एक अगर लर्न कर लिया तो दूसरा हो जाएगा। नाउ इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन्स क्रेडिट होगा, और डिक्रीज इन रेवेन्यू और गेन्स क्या होगा, डेबिट होगा। जस्ट रिवर्स। So student, I hope you have understood rules of recording changes in assets and liabilities. So assets हमेशा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसीलिए हम लोग एसेट और एक्सपेंसेस को एक कैटेगरी में रखे हैं, देखो, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम को अलग रखे हैं। अब आते हैं हम लोग, these rules can also be exhibited with the help of accounts. So, जैसे हमने एसेट्स अकाउंट बनाया, सो एसेट जब इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। राइट। नाउ एक्सपेंसेस या लॉसेस, अगर इंक्रीज होगा तो वही डेबिट साइड में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज जस्ट रिवर्स होता है, इंक्रीज आपका लायबिलिटीज क्रेडिट में होगा और डिक्रीज डेबिट में होगा। नाउ कैपिटल भी लायबिलिटी वाले साइड का ही पार्ट है। सो अगर डिक्रीज होगा कैपिटल तो डेबिट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इनकम आल्सो, रेवेन्यू और गेन, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड और डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी डेबिट। तो आपने देखा कि एक्सपेंसेस और एसेट्स का जस्ट रिवर्स यहाँ कुछ एग्जांपल ये है यहाँ पे। एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, टेक एन एग्जांपल। ट्रांजैक्शन 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप बताइए कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश से। सो एनालिसिस करो, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। सो कैश क्या होता है, एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सो देखिए यहाँ कैश अकाउंट बनाया तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखा। दूसरा पोर्शन क्या आ रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट। सो एक तरफ तो एसेट क्रिएट हो रहा है, दूसरा पैसा आया कहाँ से, ओनर से, तो ये कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल अकाउंट्स में आप देखो क्या किया है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखा है। राइट। अब ठीक इसी तरह कैश डिपॉजिटेड है। अब बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट में देखो क्रेडिट किया है। लेकिन बैंक क्या होता है, एसेट्स, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को डेबिट किया। राइट। आई होप कि यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा अभी। और जस्ट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऐसे। सो थर्ड ट्रांजैक्शन इज सेइंग bought goods for cash। so देखो कैश आपने परचेस किया गुड्स, तो आपके पास क्या क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, पहला कि गुड्स आपके पास आ रहा है और दूसरा कैश जा रहा है। तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, गुड्स।
तो गुड्स को हम लोग परचेस के नाम से दिखाते हैं, परचेस को हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है चाहे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। दूसरा चीज हमने कैश खरीदा तो कैश हमारा डिक्रीज होगा। देखिए कैश एसेट्स होता है और डिक्रीज हो रहा है, सो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, राइट। और चूंकि गुड्स जो अब हम खरीदेंगे तो उसको परचेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को, इसलिए परचेस को हम एक्सपेंसेज मानते हैं, परचेस इज एन एक्सपेंसेज और एक्सपेंसेज इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। अब आते हैं हम लोग, फर्नीचर खरीदा राम से उधार, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 13,000। सो फर्नीचर एसेट से इंक्रीज कर रहा है सो इट विल बी डेबिटेड, और राम बिकम्स क्रेडिटर मींस लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग सो इट विल बी क्रेडिटेड। सो फर्नीचर डेबिट हो गया और राम क्रेडिट हो गया। Fifth transaction is saying goods costing rupees 3,000 was sold to Mohan for rupees 4,500. So यहाँ क्या कर रहा है, सेल्स रिवेन्यू है, रिवेन्यू मीन्स इनकम इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और चूंकि मोहन जो है हमारा वो कस्टमर है जिसको मैंने क्रेडिट में सेल किया तो ये डेटर बन गया, और डेटर क्या होता है, एसेट्स। सो डेटर इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीजेस, सो मोहन को हम लोग डेबिट कर देंगे, राइट। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। 6 ट्रांजेक्शन भी चेक कर लो। withdrew cash rupees 1,000 and goods rupees 2,000 for personal use। तो पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ किया। तो पहली बात की कैश आपका जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। गुड्स इज आल्सो गोइंग, तो गुड्स को भी आपने क्या किया, स्टॉक के नाम से था, डिक्रीज कर दिया, स्टॉक एसेट्स होता है। अब या परचेस को भी लिख सकते हो स्टॉक की जगह, यहाँ एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट हो गया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब कैपिटल क्या हुआ आपका, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। जब भी कभी ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से चाहे पैसा या सामान कुछ भी ले जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होगा, इसलिए कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को डेबिट कर दिया। यहाँ पे आप चेक करो, पर्सनल यूज फॉर ओनर, सो कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट 7, पेड सैलरी रुपीज 2,000 इन कैश। सो कैश आपका जा रहा है तो कैश आपका अकाउंट देखो क्रेडिट हो गया, डिक्रीज हो गया, और सैलरी एक्सपेंसेज है तो सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है तो डेबिट कर दिया, और फर्नीचर एसेट्स है जो कि डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, एसेट एक्सपेंसेस ड्राइंग ये सारा चीज। अब ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें बोल रहा है कि ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, आल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स टू विच दे बिलोंग। जैसे राम प्रोप्राइटर है तो क्या हुआ, कैपिटल या ओनर्स फंड, परचेस ऑफ गुड्स एक्सपेंसेज हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया, डेटर एसेट्स, बैंक एसेट्स है, रेंट एक्सपेंसेज है, कैश एसेट्स है, इंटरेस्ट रिसिप्ट इनकम है, रेवेन्यू, क्या क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, फर्नीचर एसेट्स है। तो आपको नेचर समझ में आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, इंक्रीज। सो इंक्रीज इन सारी चीजों में होगा तो किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको होमवर्क में करके रखोगे आप लोग, और मैं अभी एक लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। आई एम शेयरिंग हियर हर्ष गुप्ता सीट। First question he has attempted, increase in asset will be debit, yes correct. Now expenses and asset always have debit balance, yes. Liabilities and capital credit balance होगा, debit बेटा just reverse होगा, अगर आप asset और expenses को debit किए तो liabilities और capital क्या होगा, just credit होगा, okay. And now decrease in asset and in expenses will be credit, yes very good. डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल डेबिट, गुड। सो सभी को समझ में आ गया कि कहां पर इनका एक गलती है, जिसको 5 आउट ऑफ 5 मिला होगा वो सब सही होगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, इज देयर एनी कंफ्यूजन, बताइए। नो सर। समझ में आ गया, अच्छा लगा टेस्ट देना, यस यस सर। डेली इसी तरह अपना और प्रैक्टिस कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास में भी क्लास हम इसी तरह 4-5 क्वेश्चन बनाकर लास्ट में फीडबैक लिया करेंगे, जिससे आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ क्या समझ में आया, अगर से इस टाइप से है तो ठीक है। सो आप लोग करेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस क्लास, दिस मीटिंग, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, ओके बाय।